मेरे पापा के सामने बोल रहे हैं कि सॉ योर वीडियोस, आप तो बहुत एडवांस लड़की हो। ओह, आई वाज सो फ्यूरियस बिकॉज यू नो शिट, मेरे ऊपर केस होने वाला है। सो बेसिकली दैट गर्ल हैज ब्लॉक्ड मी। Hi guys, are you ready for some tea? So I was getting ready, like I'm literally in the middle of getting ready, and I thought, what? Like I was thinking about everything that happened. और ऐसा होता है ना, मेकअप करते हुए गुस्सा हो रही होती कि उसने ऐसा बोल कैसे दिया मेरे बारे में, ऐसा. So I realized that's a lot of tea, and I know someone who would like that. You. So now, literally in the middle of getting ready, I am going to give you some tea of what has happened recently or what had happened earlier that just came into limelight. Stuff that left me like, what the hell? Are we ready? I'm going to do my makeup while shooting this, and none of the products I'm using is sponsored, so you don't have to be like, kya skip karu? Okay, first things first. This is a little scary. It's a little story time topic which I might do later अगर इस बात की कोई story time हुई, which I hope कि ना हो. मैं recently, let's just say that I did something साथ वाले haunted घर जाके, और उसके मुझे सारे नतीजे मिल ही गए थे. Shit like that happened, but why I'm telling you this is because उस टाइम पे एलिना had come over, ठीक है. She was my college roommate, और वो कभी मेरे घर नहीं आई थी इससे पहले तक. So वो मेरे घर आई थी अब पहली बार, and I was like, ठीक है, हम like 6 बजे सोए थे रात को. We were just yapping about, you know, college life and where are the people that we used to hang out with earlier, where are they now, stuff like that. So I was giving her a lot of updates. One of those updates being that there was this one girl who had a huge crush on Pratham, who's my boyfriend, in case you didn't know. And she would keep texting him. Like, they were friends like long before I even came into the picture. But not like friends that talk all the time. Just like, I would say, acquaintances. Okay? Ki hi, hello, blah blah. So now when Pratham and I weren't dating also, I knew that that girl had a thing for him, and I told him, but he was like, no way, like not her, you know, कि I don't think so, we don't even talk at all, कभी महीने में एक बार बात हो गई तो हो गई types. But you know, girls know, okay? And especially मेरी तो प्रथम पे गंदी नजर थी, तो I knew. Anyway, so this is long, like what, almost 4 years ago, ठीक है? Yeah, fuck, this is 2022. So we forgot about it, ठीक है? I think we're back in 2024-ish. That girl started texting him again, okay? And obviously he wasn't replying. And the thing with him is that he's completely opposite of me. You know how I talk a lot? He does not talk. Like, he only talks to me, or like maybe his very close friends. तो अगर उसको परिधि फ्रेया, जो हमारे कॉलेज ग्रुप के दोस्त हैं, वो भी मैसेज करते हैं, they also have to text me that please ask him to get back to us, and then I have to text him that they have texted you something, check. So he's just like that, he's been like that, and that's the reason why I fell for him, because he just did not give a fuck, and I give a lot of fucks. So I was like, okay, I need somebody to balance it out. Anyway, why I'm telling you all of this bhang bosta is because, so that girl started texting him again in 2024-ish, like, and very random thing, like, of course, you know, like, our girl version of sliding into somebody's DMs is like sending them a reel, or like maybe liking their picture. Like, मेरी तरफ से तो if I look at you, that means that I'm giving you a hint, take it or leave it. तो वो बंदी उसको ऐसे खुद से मैसेज करने लगी थी, and of course he wasn't replying. And then that girl asked another common friend कि, you know, why is he not replying? So that friend said that because of Piyanshi, कि he's in a relationship now, so he would not reply, and Piyanshi doesn't like when he replies to anybody. That's not true. I think, I don't know why, but at least that's what that friend told the girl. Let's call her F. Anyway, ठीक है, तो अब ये बात भी, इस बात को भी हो गए 2 साल भाई, ठीक है, भूल गए ये बात जो भी हुई. उसके बाद वो बंदी ऐसे बीच में उसको मैसेज करती थी, वो अपने उसके डीएम्स में खुद से ही बात करती थी कि यू नो व्हाट, दिस हैपेंड, यू नो हाउ वी यूज्ड टू hang out with this guy, this happened to this guy got married, and like she would just keep texting him and he would not reply. And the thing is that this is a very low key thing. Like, अब मैं आपको अभी बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि ओ इतना सब हो रहा है, but this would happen once in like 8 months, you know. So even I don't think about, like, I mean, I'm kind of lying. I would sort of, you know, be like, but the thing is, I am not insecure. I was just like, you know, or even if you reply, it's fine, I don't care, blah blah. But he himself just never replied. All that happened. So abhi jab Elena mere ghar aayi thi, so I was just catching her up on all this, you know, कि you remember that girl we used to, like, you know, hang out with, ऐसे ऐसे करती थी वो.
तो फिर एलिना ने बोला कि व्हाट इज शी डूइंग नाउ, लेट्स चेक हर इंस्टाग्राम. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड या श्योर. आई डोंट फॉलो हर. प्रथम आल्सो नेवर फॉलोड हर बाय द वे. ठीक है, तो मैं पहले प्रथम की फॉलोइंग में चेक कर रही थी, मुझे उसमें भी नहीं मिली. तो फिर मैंने उससे पूछा कि प्रथम से कि वो उसको डू यू फॉलो. ही वाज लाइक आई नेवर फॉलोड हर, मे बी यू कैन चेक दिस पर्सनस फॉलोइंग. मैं चेक करी, मुझे उसमें भी नहीं मिली. मेरे को लगा भाई मुझे नहीं पता, क्या पता उसका यूजर नेम वगैरह कुछ डिफरेंट हो, तो ठीक है. फिर एलिना चेक कर रही है, उसको मिल गई. So basically that girl has blocked me because my boyfriend is not talking to her after being with me. And I didn't even know, like, I am telling you, this was the first time I even searched for her Instagram ID. I had never, like, I swear to God, okay, I swear on you guys, like my almost 100k play button, I had never stalked her Instagram ID or anything. First of all, because it was private. Second of all, I just never thought that into it. I was like, हाँ ठीक है, होता रहता है. और मुझे, मैं ये बात इतनी कॉमनली लेती हूँ कि भाई हमें भी तो, लड़कियों को भी तो मैसेज आते ही रहते हैं ना, ऐसे किसी भी लड़के का अपनी डीएम में गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहे होते. सो आई जस्ट नेवर थॉट ऑफ इट एज अ बिग डील. बट अपेरेंटली दैट गर्ल हैज ब्लॉक्ड मी. एंड उसने मुझे क्यों ब्लॉक किया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं किया है, क्योंकि वो कभी इतनी क्लोज क्या, वो हमारे ग्रुप में भी नहीं थी. शी वॉज जस्ट एन अक्वेंटेंस. कभी ऐसे हाय हेलो हो गई, या फिर मेरा कोई दोस्त, ऐसा होता है ना, तुम चल रहे हो तो कॉलेज में और तुम्हारा दोस्त बहुत सारे दोस्तों को जानता है, तो ऐसे मेरी कोई दोस्त होती है, वो उसको जानती है, बात हो गई, जो भी ऐसे हाय हेलो, तो दैट्स इट. सो या वेल आई हैव बीन ब्लॉक्ड, बट व्हाट द फक डिड आई इवन डू? आई डिडंट नो एनीथिंग. So what I'm assuming is that it's sheer jealousy. Well, why are you jealous of me, queen? I didn't even do anything. I didn't say anything to you, and I did not even like. And I feel like मैं justify करनी कि मैंने नहीं बोला मेरे boyfriend को कि तेरे से बात मत कर, क्योंकि this is very obvious. Even if I'm single, why the fuck would I text somebody else's boyfriend good morning, good night, stuff like that? Anyway, ठीक है. So that was the first piece of tea that I had gotten. Another, again, this is also from college days, and ये actually मुझे पता चला था 2 हफ्ते पहले इश. अब किसके थ्रू पता चला वो मैं बोलूंगी नहीं, बिकॉज आई डोंट नो हु इज वाचिंग इट एंड हु इज नॉट. दिस इज बैक इन 2023 आई थिंक. मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था 2022 में, ठीक है. और ये जो सीन हुआ था ये 2023 में हुआ. आई थिंक मेरे 500-600 सब्सक्राइबर्स होंगे, एंड मैं कभी ब्रॉडकास्ट नहीं करती थी. लाइक आई हैव टू टेल यू दैट गाइस, आई वुड नेवर ब्रॉडकास्ट माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज आई थॉट कि पहली बात तो मैंने कभी अपने इंस्टाग्राम पे नहीं डाला, क्योंकि आई डिडंट वांट पीपल टू जस्ट वॉच माई वीडियोज फॉर यू नो शिट्स एंड गिगल्स की ये देखिए क्या कर रही है, ये क्या कर रही है. मेरे को वैसे व्यूज चाहिए ही नहीं थे. सो आई थिंक आई स्टार्टेड like promoting my YouTube on my Instagram in 2024 after graduating, या maybe graduate होने ही वाली थी जब तब. I mean I have to admit that maybe I was a little bit embarrassed or shy or whatever, but what the fuck, okay. Anyway, तो मैंने कभी ब्रॉडकास्ट नहीं किया था. So हमारे कॉलेज में एक ऐसा फेस्ट हो रहा था. I don't know, हो सकता है कि if you guys go back on my videos you might find there's this vlog that I've posted, ठीक है, किसी फेस्ट का. तो उस फेस्ट में someone famous was coming, okay, and they said that you are not allowed to film like their whatever commentary they're doing, you're not allowed to film that. Now if you tell me that I'm not allowed to do something, I will do it, okay, and that's fucked up on my part. I get it, ठीक है. मैंने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फिल्म नहीं किया था, मैं ब्लॉग कर रही थी, तो I was just showing you guys that time, whoever was following me then, कि you know snippets of what happens in college, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ व्लॉग्स बनाती थी. Now, when I tell you I had like 500 subscribers, maybe उससे भी कम हो, क्योंकि मेरे को 1 या 2 maximum comments, like I was a baby, okay, that time. So, मैंने किसी तरीके से हिम्मत की कि मैं ठीक है कॉलेज में हल्का सा थोड़ा सा व्लॉग करती हूँ. एंड उस टाइम पे मैंने व्लॉग वगैरह करके बहुत लाइक आई एम टेलिंग यू लाइक 3 या 4 सेकंड की कोई क्लिप होगी जहाँ पे दिख रहा है कि विच फेमस पर्सन हैज कम, एंड वो मैंने डाल दी अपने व्लॉग में, ठीक है. नाउ मैं उस टाइम पे भी और मैं अभी भी वीडियो बनाती हूँ, मैं एज सुन एज पॉसिबल एडिट करके अपलोड करी हूँ. मैं चुल है, नो अदर रीजन, जस्ट चुल. So because of that chul, I made that video and I edited it and I uploaded it, I think the same day, like the same night या फिर the next day, ठीक है. फिर अपलोड करने के 10-15 मिनट बाद ही मुझे एक कॉल आता है, ठीक है, स्टूडेंट बॉडी या कोई टीम से कॉलेज की. They call me and they're like, how can you do this? And I'm like, what the fuck did I do? Like, who are you first of all? मेरे सिर्फ कॉलेज में जो मेरा सर्कल था, मैं उनसे हटके आई वुड नेवर टॉक टू एनीबडी बिकॉज आई एम जस्ट नॉट लाइक दैट. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई डोंट विश टू हैव अ लॉट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, यू नो, दैट
if you're able to call me, that means you're my close friend. So anyway, तो मुझे random number से call आ रहा है कि how can you do this, and I'm like, who the hell are you, queen? Like, first tell me that, then I will tell you how I did what. And then they were like, we specifically told you you cannot put videos on this on your Instagram or anything. And I'm like, she tells me that you put it on your YouTube. And I'm like, how the fuck do you know? Like at that like time, I think 3-4 लोगों को प्रथम like जो प्रथम then my roommates, I think बहुत close, और मेरे 2-4 ऐसे जो उस ग्रुप में मेरे 10-12 लोग थे हमारे ग्रुप में, उनके अलावा मैंने खुद से कभी किसी को बताया भी नहीं था, और बाहर से अगर किसी को पता चला भी है तो they never like told me, क्योंकि अगेन एज आई मेंशन आई वाज़न्ट फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है. तो आई वाज इन शॉक पहली बात तो कि डैम. एंड देन वो बंदी मुझे बोलती है, जैसे मुझे कॉल किया कि जो वो फेमस बंदा आया था, लेट्स कॉल देम एम, ठीक है, वो जो फेमस बंदा था उनकी टीम ने तुम्हारी वीडियो देखी है और उन्होंने तुम्हारी वीडियो देख के बोला कि इस लड़की ने डाल दिया है, वी आर गोइंग टू आई डोंट नो डू सम केस अगेंस्ट हर, लाइक सू हर और स्टफ लाइक दैट. और उस वीडियो में मैंने अब शायद वो क्लिप्स हटा दी थी, पर उस क्लिप में पता क्या, सपोज आई एम दैट फेमस पर्सन एंड आई कम ऑन द स्टेज एंड आई एम लाइक, हाय गाइस, आई एम प्रियांशी मेहरा एंड टुडे आई एम गोना फक सम शिट अप, लाइक दिस इज इट, 3-4 सेकंड, ठीक है. तो वो बंदी मुझे बोल रही है कि किसी फेमस उनकी टीम ने देख लिया है. तो बिफोर थिंकिंग दैट ओ माई गॉड यू नो शिट, मेरे ऊपर केस होने वाला है, आई वॉज थिंकिंग कि वाओ, मेरे 5,000 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल इतना बढ़ गया है कि अब मुझे किसी फेमस बंदे की, दैट पर्सन वेरी फेमस बाय द वे इवन नाउ, उनकी टीम ने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने सोचा कि आई एम लाइक, दे थॉट ऑफ मी एज अ थ्रेट. सो आई वाज लाइक, इट्स ओके, आई एम सो सॉरी, आई विल रिमूव इट ब्ला ब्ला. तो मैंने रिमूव कर दी, ठीक है भाई, उनकी क्या गलती, वो जो मुझे फोन करके बोल रहे उनकी, मुझे लगा उनकी सही में गांड मार दी उस टीम ने. देन ऑल दैट थिंग गॉट ओवर. नाउ व्हेन दिस टाइम आई वेंट बैक टू पुणे, वी मेट अ फ्यू पीपल एंड देन रिसेंटली आई गॉट टू नो दैट उनकी टीम ने वो वीडियो नहीं देखी थी. मेरे जो 12 लोगों का सर्कल था मेरे ग्रुप में, उनमें से किसी ने देखा था कि मैंने वो डाल दिया, एंड दैट पर्सन वाज सो, आई डोंट नो, जेलस ऑफ मी और मैड एट मी, और दे जस्ट लाइक इंटरनली लाइक मे बी हेटेड मी सीक्रेटली, that they told the student body team, whoever that person was who called me, that she's doing all of this, ask her to remove it, ask her to remove it. Are you fucking kidding me? Like what? What the fuck did I do to you? Like, और मेरे कभी दिमाग में मैं मान गई कि उस फेमस बंदे की टीम ने किया होगा कि हाँ मैं हूँ यहाँ की एमा चेम्बरलेन इस कॉलेज की, तो मुझे पकड़ लिया है उन्होंने, मेरे को जानते हैं लोग. बट मैंने अपने दिमाग में भी नहीं सोचा कि somebody so close to me would go behind my back and try to bring down a video on such a small channel of mine. Like, and the thing is, I have to be honest, at that time, see, right now YouTube, you all know that it means a lot to me, right? That time only I knew how much it meant to me, and like, you know, people that were really close to me. So अभी जब मुझे पता चला कि उस बंदे / बंदी ने ये बात आगे जाके बोली है, I was so furious because even though वो वीडियो अब शायद डिमोनेटाइज भी हो गई होगी क्योंकि मैंने उस पर गाने वाने बजाए होंगे, but because of that one act, it pissed me off so much that I was this close to just texting them that how miserable, like that how miserable are you, like, you know. But of course I didn't, क्योंकि फिर मैं ऐसे परिधि वगैरह को बताई थी, उन्होंने बोला कि छोड़ो, like, you know, Priyanshi, you have to grow out of it. I don't grow out of anything. If you have done me wrong, even in 3rd grade, I will make a story time about it and I'll make sure that you see it. Like, I do not grow out of stuff. You just don't fuck with me and I won't fuck with you. But yeah, that same person who did that, why it was so unbelievable was because they keep texting me, like, till now, and they keep liking my, like, they don't comment on my videos. तो ऐसे आप ढूंढने निकलोगे, मैं आपका time waste क्यों कराऊँ? Like, they say stuff that, oh, my family members watch your videos, like, oh, somebody watches your videos, I love it, you're so funny, blah blah blah. और आप मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट दोगे, मैं मान जाऊंगी, ठीक है, मैं मान जाऊंगी. आप मेरे लिए कुछ बुरा बोलोगे, मैं नहीं मानूंगी. कॉम्प्लीमेंट आप मुझे दोगे, थैंक यू. सो मैंने मान लिया, पर लेकिन फिर जो मुझे अभी थोड़े 1-2 हफ्ते पहले पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है, मेरा नजरिया बदल चुका है उस बंदी को लेके. लाइक हाउ सैड, लाइक लिटरली हाउ सैड, पिस्ड मी ऑफ सो मच. बट ओके, मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ, मेकअप तो मैंने किया नहीं, चपड़ी कर रही हूँ. And every time I just come to this one conclusion that these bitches be mad for no reason. They be jealous for what? Even I don't know. And I don't care कि आप दुखी हो और मैं आपको benefit of doubt दूँ इस बात का. मैं भी दुखी हूँ
और दुनिया में खुश कौन है? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये सोच के कि हाँ हो सकता है कि वो अपने घर पे पिटती हो इसीलिए उसने आके मेरे लिए बकवासी, मैं कहाँ से आ गई? आपको अगर कहीं से रैप्टा पड़ता भी हो जस्ट हाइपोथेटिकली, अब वो गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल? व्हाट द हेल डिड आई डू, यू नो? एनीवे, मैं बिल्कुल अपने टॉपिक से ड्रिफ्ट ही हो गई। अब आते हैं ऑन सम टी फ्रॉम some of my relatives. And अभी मेरे पापा का जो बर्थडे था, ठीक है, तब की बात है। So somebody asked कि what are you doing? And now these people know because पहली बात तो मेरी मम्मी ढिंडोरा पीटाती है कि हाँ ये तो यूट्यूबर है, हाँ ये तो यूट्यूबर है। लाइक किसी को नहीं भी जानना होगा ना, वो तो भी उस दिन अपनी मम्मा सूट सिलाने गई, वहां पे भी बता के आ गई, ठीक है। तो जब मेरे पापा का बर्थडे हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैमिली फ्रेंड्स एंड व्हाटएवर दीस पीपल केम एंड नाउ व्हेन समबडी आस्क्स मी अबाउट यूट्यूब नो आई गेट वेरी शाय कि बेटा कैसे काम करता है, आपको कैसे पैसे मिलते हैं, या फिर आप क्यों लोग आपको लाइक वो तो अब भाई हमारे मम्मी पापा की जो एज के लोग हैं, जो उनके जो जनरेशन है, उनको ये समझाना भी कि ऑलमोस्ट 1 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कि कैसे क्या। बट एक उसमें से पर्टिकुलर एक अंकल हैं जिनको मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मेरे फैमिली से क्लोज हैं और एटलीस्ट ही प्रिटेंड्स। सो उनकी फैमिली आई हुई थी, ठीक है, तो मैं उनको पहले भी बता चुकी हूँ पूरा सीन कि कैसे होता है ब्रांड डील्स, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, एवरीथिंग। सो ही कम्स टू माई डैड्स बर्थडे पार्टी एंड वो अपनी वाइफ को दिखाते हैं कि सी मिस यूट्यूबर्स हियर, आई वाज लाइक क्योंकि करते हैं ऐसे, ठीक है, मम्मी पापा के दोस्त। और उसके बाद फिर वो मेरे पापा के सामने बोल रहे हैं कि सॉ योर वीडियोस, आप तो बहुत एडवांस लड़की हो। पहले भी एक बार मुझे किसी ने एडवांस बोला था, आई डोंट नो इफ आई एक्चुअली नो कि उनका एडवांस से क्या मतलब है, दे जस्ट वांट टू कॉल मी यू नो व्हाट। एक मिनट, पहले मैं अपना ये लगा लूं, ठीक है। तो आई यूज्ड टू हैंग आउट विद हिज डॉटर, ठीक है, बहुत ज्यादा, वो मेरे से बड़ी है उनकी बेटी। वैसे हम बचपन में बहुत ज्यादा ऐसे साथ साथ घूमते थे, ठीक है। वो अंकल आके मुझे बोल रहे हैं कि मेरे पापा के सामने कि तुम तो बड़ी एडवांस हो, तुम तो मतलब शर्माती नहीं हो कुछ भी बोलने से। और मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे पापा मेरा यूट्यूब चैनल देख लेते हैं, जो कि अब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट बिलीव इट, बट ही हैजंट वॉच्ड इट बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स माय प्राइवेसी नाउ। मैंने उनको पहले भी समझाया था कि अगर आप देखोगे आपका मूड खराब होगा तो आप इससे अच्छा मत ही देखो। तो ही इज लाइक इट्स फाइन, आई जस्ट वोंट वॉच इट, यू डू योर ओन थिंग। तो उस टाइम पे मेरे पापा बोल रहे हैं कि ऐसा क्या बोला तूने, जो अंकल स्पेशली बोल रहे हैं, ऐसा क्या किया तूने? तो आई जस्ट हैड टू कम अप एंड बी लाइक कि मैंने बोल दिया है सब कुछ। मैंने बोला हाँ मैं बहुत गालियां देती हूँ, शायद इसलिए बोल रहे होंगे। बात है कि मैं अपने अब चैनल पे कोई ऐसे नशीले पदार्थ तो यूज करती दिखूंगी नहीं आपको नाउ। सो मेरे बाबू वहां कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या करती है मुझे बता। और वो अंकल वहां पे मुझे देख रहे हैं कि नहीं ये हमारे बीच की बात है, हमारे बीच में कुछ नहीं है, Who the fuck are you, पहली बात तो, and I hate you। फिर anyway उस टाइम पे कुछ बहुत आई थिंक कोई तो कॉन्सर्ट हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सुना इन्फ्लुएंसर्स को फ्री मिलता है वहां पे जाना, तुझे नहीं मिला क्या? आई थिंक करण और पता नहीं किसी का तो कॉन्सर्ट हो रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं मिला, मतलब इफ आई दिस नहीं मिला, ठीक है। तो बोला कि क्यों, तेरे फॉलोअर्स फेक हैं क्या? हाउ आर यू what almost 60-year-old man hating on a 22-year-old girl who's just trying to make a living for herself, okay? And if he is watching, because he seemed like he watches all my videos, I am talking about you, okay? And next time I will not be shy to take your name. I just don't give a fuck, मैं बहुत एडवांस हूँ। और उन्होंने बोला कि तेरे फेक है क्या? तो मैंने बोला कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसे फेक फॉलोअर्स तो क्यों ही खरीदूंगी। और तो वो कहते हैं कि पर ये सब करके तो कितना ही आगे बढ़ जाएगी ना, मतलब ये सब करके कुछ अच्छा कर, ये छोड़ कॉर्पोरेट जॉब कर ले, तू कर ले, तो कम पैसे होंगे पर थोड़ी इज्जत तो होगी। अरे मैं तो भाई उस टाइम पे देन माय डैड स्टेप्ड अप एंड माय डैड सेड दैट कि नहीं अभी भी जो कर रही है दैट ये बिजनेस भी कर रही है और ये जो कर रही है ये बहुत खुश है एंड ये ऐसा कुछ गलत तो करती नहीं है, वरना मुझे वैसे ही पता चल जाता। तो अंकल कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पर वो कुछ भी मजाक नहीं था, ठीक है। कि एक पॉइंट पे उनकी वाइफ भी बोलने लगी कि क्या बोल रहे हो, एंड मैं जब भी उन अंकल से मिलती हूँ ही ऑलवेज टेक्स डिग्स ऑन मी, लाइक ही आई डोंट नो व्हाट आई डिड टू हिम बट ही जस्ट हेट्स मी एंड he gives me advice like he gives me such like shit advice so that I just like ruin my life। like मैं ऐसे जैसे बहुत बात करती हूँ। तो once he was like कि उस टाइम पे मैं आई थिंक अपना बिजनेस ही प्लान करी थी। तो he was like छोड़ी बिजनेस उस टाइम पे मेरा माचा वाला चलना था, ठीक है, अभी भी चल रहा है वो तो, पर उस टाइम मैंने जो स्टार्ट ही किया था। तो he was like छोड़ी बिजनेस ना, तू इतनी बातें करती है तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जा। तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं बन रही, पहली बात तो मैं ऐसे ही नहीं बोलती, मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। एंड दूसरी बात कि ऐसे मैंने बोला कि उनको पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है।
तो मुझे बोल रहे हैं कि तो पैसे तो तू अभी भी कौन सा कमा रही है, कि कमा रही है, कितना कमा रही है, बता मुझे, इतना तो तू कर ही लेती होगी. What is your problem? Just because you're like, I don't know, and his kid, like his daughter, I used to hang out with, she's such a sweet person, and there's nothing wrong with her. I think he is just like, you know, in his mind he's like, how is this girl doing better than my daughter? And I've seen this happen not only with him, okay, he was just an example, but some other of my parents friends, या फिर हमारे जो गली में लोग रहते हैं, जो मुझे बचपन में जानते थे कि मेरे मम्मी, मेरे दोस्त के मम्मी पापा, and when they see that, you know, someone who used to fail in math and math science test, or someone who was like, who used to get suspended from school or anything, like how I was, when they see that I have, from that I have become someone who is more reserved and like just अक्कल आ गई है मेरे में, they just cannot fathom the fact. उस दिन मैं एक इवेंट के लिए रेडी होके जा रही थी, ठीक है, तो मुझे ऐसे रोड पे कोई दिखी तो कहती कि, तो मतलब मेरी कोई नेबर टाइप ही थी, ठीक है, मैं सबको तो रिवील किए जा रही हूँ, अगर किसी ने कलेश कर दिया मेरे घर पे आके तो गॉड सेव मी. बट वो आंटी, मैं तैयार होकर एक इवेंट पे जाई थी, तो मुझे बोलती कि कहाँ जा रही है इतना सज के तू दोपहर के 2 बजे. तो मैंने बोला कि मेरा एक वर्क इवेंट है. हम तो वर्क इवेंट पे ऐसे ड्रेस नहीं होते, किससे मिलने जा रही है, क्या हो गया? और वो अपनी छत से, अपनी छत के इतने से छज्जे में से देख के मुझे बोल रही कहाँ जा रही है, तुम तो बहुत सच के जा रही हो, किससे मिलने जा रही है बता दे. अब बिकॉज माई लाइफ इज सो पब्लिक, ठीक है, दे हैव ऑब्वियसली सीन माई बॉयफ्रेंड, बट आई समटाइम्स जस्ट वांट टू से दैट, यू नो व्हाट, आई होप मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती, बट आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्वीन. आई डू नॉट जस्ट, even if I was like, look at me justifying it, but even if I was going to see my boyfriend, how the fuck is it your business? You know, how the fuck is it? So जितना बंदे हम सोचते हैं कि okay now, you know, they have businesses and they like live abroad most of the time and now they've, you know, mentally they've developed उनकी ऐसे orthodox thinking, नहीं, उन लोगों की सबसे ज्यादा होती है. और वो शर्माते भी नहीं है बोलने से, वो आपके मुंह पे बोल देंगे कि बेटा करियर का क्या प्लान है आपका, अच्छा आपने क्या सोचा है, डॉक्टर बनोगे आप? मुश्किल होता है डॉक्टर बनना, मुश्किल होता है. अभी आप ऐसे, मुझे तो नहीं लगता आप ऐसे, जिस हिसाब से आप पढ़ते हो, आप घूमते हो, मैं देखती हूँ आपको आपके दोस्तों के साथ, आप ऐसे घूमते फिरते हो, ऐसे नहीं बनते. डॉक्टरों के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, खुद तो आपने कुछ किया नहीं, ठीक है. और मैं पहले इन लोगों के लिए मुझे बुरा लगता था कि यार इनको कभी चांस ही नहीं मिला लाइफ में करने के लिए, पर just because life was unfair to you, why you being unfair to, you know, the younger girls who are trying to do better than you? This shit pisses me off, and it doesn't get better once you make something out of yourself. तब उनको और होता है कि इसने कर कैसे लिया, ये कुछ गलत कर रही होगी. Like जब मैं I think 9th 10th में थी ना, when I was in that rebel phase, see, I'm not going to lie, I was, but more than just, you know, being an a yash or like going around and like doing stuff with boys, I would do other stuff, like I would just run away and go for a swim at 4 AM, like भाग जाती थी घर से बाइक राइड्स पे और ये सब. अब obviously बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बहुत गलत इंटेंशन से ही कोई करता है, but I would like to believe that 50% of the time it was just genuine friendships that I had with guys, जहाँ पे हम ऐसे उठ के चले जाते ना. It wasn't just guys, it was girls too. उस टाइम पे I remember there was this one aunt who was, जिनका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, वो मेरी मम्मी की काफी क्लोज फ्रेंड थी, और उन्होंने मतलब आसपास में जो 2-4 और वो दोस्त थे, ठीक है, उनको बोला कि ये सोच रही है ना कि, मतलब उस टाइम पे मैं सोच रही थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने का, विच आई फकिंग डिड, बट वो थी कि ये सोच रही है अभी, बट तो देख लियो, इसने एक दिन प्रेग्नेंट होके घर आ जाना है वापस, तो तब देख लेंगे कौन कौन क्या करता है. और ये बात उन्होंने आके, माई मॉम ऑब्वियसली डजंट स्पीक टू हर एनी मोर, but yeah, like how the fuck can you say that shit about a kid? And that time when I was 15 years old, I'm not going to lie, I was doing a lot of stuff, but why would you wish that on a child, you know? And all of this is coming up now because ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही थी, और मैं अभी अपना मेकअप करते हुए सोच रही थी कि वैसी होती हूँ वैसी होती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि a lot of you guys also, like you watch my videos, you are teenagers, or I'm assuming that you've also gone through this stuff because I think every girl has. बट ये सब कुछ, ये जो भी आंटी और मेरी दोस्त जिसने आके कंप्लेन कर रही थी स्टूडेंट बॉडी में, या फिर जो भी वो लोग हैं, वो ये सब एक ऐसी बंदी के बारे में बोल रहे हैं, मेरे बारे में, जो वैसे ही मुंह फट है. लाइक अगर मेरे मुंह पे आके कोई मुझे बोलता है कि तू ये करती है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उल्टा बोल दूंगी, तो आपके लिए तो मैं करती भी नहीं हूँ, और मैं बोल देती हूँ. लाइक यू ऑल ऑलरेडी नो. अगर वो मेरे को ऐसे टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, आई जस्ट ऑलवेज वंडर कि जो लोग चुप रहते हैं, ठीक है, जो लोग नहीं बोलते, या फिर इंट्रोवर्ट्स, और जस्ट पीपल हु आर टू स्कैर्ड टू लाइक स्पीक अप,
उनकी तो क्या ही हालत करते होंगे भाई ये लोग. तो इससे अच्छा तो तुम बोल लो. लाइक I would much rather be the bad person than be someone who takes shit from people who think that they're very good people. हम तो समाज के लिए अच्छा सोचते हैं. हम तो तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं. Hands join है मेरे. Hands ऐसे और legs भी. But yeah, that was it. That was a tad bit of tea that I wanted to give you guys. And now that we're so close to 100k, I am planning a meetup in Delhi. I'm still talking to a lot of places where I can do it. I'm mostly going to do it at a cafe. So if you're from Delhi and you're watching, please just comment and tell me if you'd come, because मैं अपने दिमाग में यही सोच रही हूँ कि शायद कोई आएगा ही नहीं. And for the people who are not in Delhi, I am so sorry, but whenever I come and travel to other cities, I will try to do some meetups or just something where I can meet all of you. And yeah, that was it. I hope you guys enjoyed this video, and I will see you in my next one. Bye, take care, and do not take shit from anybody. Okay?